Good evening, everyone. Good evening, everyone. I think you can hear my voice and you can see the presentation, right? Okay, ठीक है. So how was the class today in the morning? Okay, very helpful. Okay, you got some new tips for the ethics paper. Yes, sir, especially about how to present our answers and how we can use more relevant words and complete our paper in time. And some keywords also that sir gave, it was very helpful. Okay, fine. So we will conduct such webinars which are very useful for you people. One webinar will be taken by Rahul Srivastav also. I've asked him already. So maybe you can have more clarity about how and what he did so that he scored so much marks, which actually propelled his rank to such a level. Now coming to this the ethics theory part, last time we have left from the case study, and now theory part. However, theory there is nothing much. It's like almost very similar way of writing the papers. However, it is very different with the GS paper. See, in GS paper, what you people are doing, like whatever you are memorizing and you're writing the answer, that is basically the factual information or the analysis in any form and as per the question asked. But the theory paper of ethics is basically the questions are very generalized. However, the answer should be little bit specific. You cannot write a generalized answer. A specific answer plus the the answers. Okay, plus the answers of this ethics theory should be very precise as per the question asked. Okay, this is the first thing. Secondly, the theory part are of these ethics paper, it is basically theoretical plus practical plus examples, and plus maybe you can use thinkers if you know. ठीक है. However, thinkers are important if you remember their name or you remember their codes, or some code based questions will also be there. ठीक है. So all those things will work right as per the question asked. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि don't make your answer generalized in the ethics theory paper. तो पहला है no generalized answer. क्योंकि क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी जनरल. आप जनरल लिख सकते हो, है ना. इन एथिक्स मतलब कोई ज्यादा देयर इज नो सेट रूल्स एंड नो क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक. हार्डली 30% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द बुक. जो 30% होगा दैट इज बेसिकली द एथिक्स क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी पार्ट. केस स्टडीज विल बी एंटायरली न्यू फॉर यू, कहीं से नहीं मिलेगा. हाउएवर यू कैन हैव सम आइडिया क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बट द एथिक्स थ्योरी विल बी मोर और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएंगे एज पर द टर्मोलॉजीज. कुछ कुछ आपको टर्मोलॉजी मिल सकती है. मे बी यू विल गेट सम explanation of some terms, or you can use some words related to the those terminologies as per the contents of the ethics paper. ठीक है, in the answers वो आप लिख सकते हो. ठीक है, तो try to avoid generalization in the ethics paper. Be specific. So understand the question first. ठीक है, अब पहले क्या करो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करिए, है ना. गेट द की पॉइंट्स. की पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि व्हाट इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू. ओके, व्हाट इट इज रेफरिंग टू, उसका जो एग्जैक्टली वर्ड होगा या कुछ होगा वो उसको. फिर, है ना, अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस, देन फ्रेम योर आंसर इन योर माइंड. मे बी यू कैन लिटिल बिट एक्सप्लेन. ठीक है, यू कैन लिटिल बिट एक्सप्लेन इट. उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है. उसके बाद ओके, जस्ट अ मिनट, टू थ्री थिंग्स आई टेल मोर. ठीक है, सो लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन कर देना है. फिर यू कैन यूज द थिंग्स लाइक विच इज मेंशन इन द सिलेबस. जो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल मे बी यू कैन यूज द यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट का कुछ बात हो सकता है, यूटिलिटेरिज्म. मे बी यू कैन यूज द डिकॉन्टोलॉजी. मतलब ऐसे वर्ड्स
कुछ यूज होते हैं, so you can use them easily, ठीक है। और मे बी समथिंग which is any words, कुछ भी वर्ड्स होते हैं, कोई कोई वर्ड्स का यूसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव टाइप के बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ऐसे यू कैन यूज सच टेक्नोलॉजीज इफ इट इज, इफ द रिक्वायरमेंट इज देयर, ठीक है। एक ये है। देन मे बी यू कैन यूज द फिलोसफर्स, मे बी इंडियन और वेस्टर्न, है ना, वट एवर, उनके थिंकर्स के नाम आप यूज कर सकते हैं। इफ सम कोट्स यू रिमेंबर as per the question asked which is relevant to the question, you can use that also, ठीक है। then you can use the examples, कोई examples maybe from the daily, कुछ ऐसा example which is well known example, either it is well known, है ना, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, whatever based on the question asked, है ना, whatever the examples, well known examples, or you can frame also, frame examples में क्या होता है कि you have to uh, talk about some situation and then explain that situation briefly and as per the related to the question, but this will take much time, framing example will take time because ये एक पैराग्राफ आपका ये एक पेज यूज हो जाएगा। तो ये जब करना है the when you don't have any idea कि क्या लिखना है, then only, else you use the well known examples, ठीक है। well known ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स है, फिलोसफर के वर्ड्स हैं, कुछ बातें हैं, you can use that well known examples, क्योंकि framing examples will take time और बहुत ज्यादा वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल आप फ्रेम करते हैं एग्जामिनेशन में एंड देन यू राइट द, यू एक्सप्लेन बाय दैट, ठीक है। बट कर सकते हैं इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या करना है, व्हाट टू डू, ठीक है। तो ये डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन एंड योर नॉलेज एंड द टाइम यू हैव, बेसिकली द टाइम का सारा खेला है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द, है ना। और उसके इसमें देखिए जो जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द इंट्रोडक्शन आल्सो, ठीक है। एंड फिर आपने यूज किया एग्जांपल्स एंड देन यू कैन कंक्लूड, है ना, कंक्लूजन, okay। So here as told by me in the last class that in the case studies you may not use introduction or conclusion because it is very time taking and you don't have time in the case study, lots of things you have to write and there are lots of things which they have asked you to elaborate on what is asked, not what you know, but here you can use, you can have introduction conclusion definitely, ठीक है। अगर ये पूरी पॉसिबिलिटी है तो आप यूज करिए, कब पेपर छूटेगा तो क्या करेंगे, आई विल टेल दैट आल्सो, ठीक है। अगर पेपर नहीं छूटना है तो आपके पास यू हैव सफिशिएंट टाइम, डेफिनेटली यू शुड यूज द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। एनीवन फ्रॉम साउथ इंडिया हु इज नॉट गेटिंग माय दिस हिंदी वर्ड्स, ऐसा कुछ है कृष्णा, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir, I'm able to understand, sir. ओके फाइन, हिंदी आल्सो ना, ठीक Yes, sir. ठीक, ओके फाइन, ऑलराइट। सो ठीक है, और भी दो तीन साउथ इंडियन है, दे आर नॉट कमिंग, 20 people are there in that channel, only 12 maybe one including me, so maybe they will be missing, then sub bolte I want the recorded one, and recording is not so easy here, but karte bhi nahi because otherwise it will spread here and there, theek hai। See, so this is this you should follow this, है ना, whole this part, and now the things is this that कि कंक्लूजन में आप दो चीज कर सकते हो, ठीक है। वन थिंग यू कैन कंक्लूड, है ना, बाय गिविंग some statement whatever as per the question asked, है ना। however the best way to conclude is that if possible, है ना, if possible, अगर possible है तो you can conclude giving its relevance in, you will note down also because फिर आपको वीडियो नहीं वॉच करना पड़ेगा, just you have to revise these notes while writing the test or the examination, then your mind will get automatically understand that okay this thing I have tried। so conclusion क्या होगा, either the statement based conclusion, but if you know some good civil service and examples उसका relevance, like for example honesty, prudence, right, fraternity, something if you can relate with the case study. I already have shared the materials of case study of examples of ethics in the maybe 4 or 5 days back in the group, okay। so you can go through those and you can have some more material from the market from where you can
एड ऑन द एग्जांपल्स, है ना, तो वो एग्जांपल बहुत काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेन पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, है ना, और यू कैन आल्सो यूज द सम डेफिनेशन, डिफाइन इफ something, they're asking some its meaning and all, so you can use the definition also, ठीक है। एक ये हुआ, दिस इज वन वे। इफ बाय चांस यू डू नॉट हैव द, है ना, द वे टू यूज these terminologies and these one philosophers, right? ठीक है, if for example terminologies and this philosophers quotes, यहाँ आपको you don't have way to use these, just introduction, maybe examples and conclusion. You do not know what terminologies you will use there, philosopher name also Indian Western you do not know, quotes also you do not remember. So there, what you do as per the question asked, it depends from question to question also, and your thinking, ability analysis, that how and what you are going to do. You can elaborate, elaborate on its positive or negative dimensions, ठीक है। This also you can do in case you don't have the, है ना, information about those कुछ terminologies and all, philosophies, philosophers codes, everything ये, see, this way I'm telling you, these are the strategies. There can be multiple strategies which you may use also. You may see some toppers copy, they have used some other strategy, but mota moti, है ना, basically the broader way is this only, ठीक है, one way or the other. So it depends that you can use multiple of these things. You can use the dimensions also. You may use the philosophers' codes, terminologies, etc. Or you can, mix and match, or you use the separately. I'm just giving you the advice. Okay, these are the consider, see, the class what I'm telling you, consider as a advice and use it as per your own कन्वीनियंस, मतलब अपने विवेक से, अपने दिमाग से उसको यूज करना है एज पर योर ओन वे। तो ये दिस इज द वे आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग ए गुड आंसर ऑफ थ्योरी पार्ट, ठीक है। तो ये यू कैन ट्राई आउट इन एनी ऑफ द आंसर्स, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। नाउ अब एवरी क्वेश्चन, अच्छा एक टाइप क्वेश्चन और आता है, आई टेल यू वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट इज बेसिकली द some terminologies may be there, some terminologies are there and you have to tell its meaning, पूछता है ना, पहले पूछता था, अब बहुत कम हो गया, लेकिन they may ask that maybe they'll give you some word like prudence, or they may give some word like emotional intelligence, etc. well ऐसे कोई भी any word they may give you, basically they are asking you the meaning, है ना। इस 2 मार्क का होता है, ऐसे 5 क्वेश्चंस होंगे तो 10 मार्क्स, लाइक दैट। So try to understand that ki what they are asking you. Are they asking you the meaning? Just meaning only? For example, if they are giving you the question like prudence, ना A part ऐसे करके B part C part ऐसे. So prudence का meaning is important because you should know the meaning first of all. But basically it's relevance in civil service, right? So basically उसका relevance क्या ही पूछा गया है कि prudence, how this quality of a civil servant will help him to perform the duties to best of its abilities, ठीक है। So basically the relevance is important, meaning to यार anybody will know, right? But how this prudence is related or it will help a person who is in civil service to perform his duties in the best possible manner, so relevance is more important. तो अगर 2 मार्क का है तो ऑब्वियसली यू विल गेट 2 मार्क्स, तो मीनिंग का 1 नंबर होगा या फिर हाफ मार्क्स होगा एंड 1 मार्क्स का रेलेवेंस होगा, सो मे यू मे नॉट गेट 2 मार्क्स बट 1.5 मार्क्स यू गेट, ठीक है। तो रेलेवेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड इफ यू
तो ज्यादा लंबा लिखना नहीं, जस्ट मीनिंग एक वर्ड में एंड रेलेवेंस सीधे, बिकॉज टाइम इज नॉट देयर, जस्ट 2 मार्कर। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एक्सप्लेनिंग 2 मार्क क्वेश्चन को 5 नंबर की तरह, राइट? तो just one sentence of relevance and maybe one word or 2 3 words of phrases of words to explain the meaning. You explain the meaning first, then come to the relevance. ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं, तो you have to attempt like this. Okay. और तो बेसिकली केस स्टडीज में ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट यू शुड नो द क्या क्या आपको करना चाहिए, व्हाट थिंग्स यू शुड प्रिपेयर। ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द, वो जो पहला पेज होता है ना कोई भी एथिक्स के, एथिक्स बुक का, ठीक है, एथिक्स बुक का जो कंटेंट पेज होता है जिसमें चैप्टर्स होते हैं 1 2 3 4, लॉट्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज में भी देयर, इंट्रोडक्शन क्या है से लेके इमोशनल इंटेलिजेंस है एक एक पे। सो यू शुड रिमेंबर द बेसिकली द कंटेंट्स और द सिलेबस, ठीक है। आपको सिलेबस आपको याद रखना चाहिए, मेन वही बात है। कंटेंट्स एंड द सिलेबस will help you to remember those words, important words, ethical vocab. Basically vocabulary, you should have the command over the vocabulary, because you have option like psychology, sociology, anthro, all science. You have a separate vocab of those optionals. Likewise the ethics have also separate vocabulary. Use those vocabulary, you will remember those vocabulary from by reading the book as well as the contents which are mentioned there, है ना, उससे easy पड़ेगा आपको याद करने में। use those things in the answer, right? So as per the question asked, so this is one way in preparing of this ethics. And about the notes and all, कि what type of notes you have to make, because time तो कम ही है, right? So notes क्या बनाना है, देखिए केस स्टडी का कोई notes नहीं बनाना है, बट केस स्टडी में, है ना, इफ यू रिमेंबर कि ऐसा कोई चीज है जो कि यू विल फॉरगेट, सो यू राइट डाउन विथ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड द एंड द बेस्ट ऑप्शन और द और एज ए कलेक्टर और एसपी व्हाट यू विल डू इन दैट केस, है ना, उस ऐसा इवेंट होता तो आप क्या करेंगे। सो दैट पर्टिकुलर स्टेप यू शुड नोट डाउन, अगर आपको लगता है तो। जस्ट एग्जाम पहले उसको रिवाइज कर लेना या कोई टेस्ट के पहले, सो दैट इट विल गिव यू इनसाइट कि सिमिलर केस विल कम। देखिए मोटा मोटी केस स्टडी क्या है, देयर आर, इफ यू रीड सो 100 केस स्टडीज, so definitely the question in the examination whatever it will come, it will be near about to that only, क्योंकि वो सारे इवेंट्स है ना, इन वन वे और द अदर इट विल बी इन द आंसर इन द क्वेश्चन, ठीक है। So very common event, if you're a collector of a district something will happen, if you're SP of district something will happen, so all those things जो है 100 case studies में मोटा मोटी similar things it will come। maybe you are a principal of a school and this has happened, cheating has happened, and or maybe NEET का example ले लेगा कि you are the director of the that examination and this leakage happened, how you will do, what steps will you do to prevent that thing, और मान लो हो गया लीकेज हो गया, now what will you do now। या फिर यूपीएससी वाला जो इवेंट हुआ जिसमें passed this examination and now the UPSC chairman has resigned, all those things can come in the form of a question in the as a form of case study। So what, so ये पूछते अगर ऐसा ऐसा हो गया, so you are at the UPSC chairman, what will you do, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। सो रिजाइन ही हैज डन, इट मे नॉट बी द राइट आंसर फॉर द केस स्टडी, ठीक है, रेजिग्नेशन इज नॉट द राइट आंसर, इट इज ए एस्केपिस्ट टेंडेंसी। So what is the right answer? Right answer may be something else which you have to write based on the case study. Maybe you will start some process of more filtered process of selecting candidates, or filtered process of that filtering the uh, OBC or maybe this EWS certificates or STS certificate, whatever. So more filtration, more level of checks and balances. So such things you can mention, so that the person who will come in the interview or maybe join the civil service is authenticated at many levels, so that no fake, no selection occurs. Okay, so such things you can
something like that you can note down for your future reference so that you remember in examination quickly, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी धारा है जैसे 144 है ना, इन द केस ऑफ राइट। अब ये चेंज हो गया है, राइट नाउ। अब नया अब देखिए सीआरपीसी ये सब चेंज हो गया है। सो बट आपको याद नहीं है, बट यू कैन राइट 144 सीआरपीसी, है ना, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इफ यू रिमेंबर इन न्यू में क्या है तो आप उसको उसको देख लेना। ऐसे करके बहुत सारी चीजें which might help you to remember, है ना, वो आप लिख लेना, ठीक है। और केस स्टडी में यही एंड मोटा मोटा समथिंग लाइक हम मैंने जो लास्ट टाइम बोला था पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल डिलेमास, एथिकल डिलेमास की बात किया था, पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस, वर्सेस कॉल ऑफ conscience, right? I explained this. So these things are always there in one form or the other form in the as a part of ethical dilemma. Okay, so these things you can use, definitely you must use them, ठीक है। इस तरह से केस स्टडी यू कैन, आप उसको लिख सकते हो। ऑल्सो द पार्ट ऑफ थ्योरी में, है ना, some meanings of some words which you find is you may not remember them, या वो terminologies, right? So you can note down notes के form में, short, very short, as well as the various ways जो मैंने यहाँ बताया है कि quotes वगैरह, like I told you the quotes, philosophers, thinkers, है ना, and maybe the examples, ये तीन चीज के you may make some very short notes. Rest you can manage, है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस से यू कैन राइट डाउन नोट्स। वेरी शॉर्ट नोट्स का मीन्स क्या है? इफ इट इज वेरी पॉपुलर कोट यू टू थिंक, सी देखिए एग्जाम में आपको याद नहीं आया कहाँ यूज करना है, पहले से क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी ने बोला था, फॉर एग्जाम्पल करो या मरो, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद द, है ना, ड्यूटी ऑफ ए सिविल सर्वेंट, मतलब ड्यूटीफुल होना चाहिए। तो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है वेयर डू और डाई मींस यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज, यही मतलब है। तो उसमें यूज करना है। ऐसे करके जस्ट आई एम टेलिंग द एग्जांपल, है ना, बहुत ही लेमन एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो यूज दोज, यू नो, कोड्स और टर्मिनोलॉजीज पहले से डिसाइड होना चाहिए कि कहाँ यूज करना है। Examination वाले दिन you will not get any time to think and replace and use. So basically if you think now, as soon as वहां पे वो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आपका जो जो बल्ब अपना जल जाएगा कि हाँ ये एग्जांपल यहाँ पे यूज करना है, ये कोड यहाँ लिखना है, ठीक है। अभी सब क्लियर है ना? तो इस तरह से मीनिंग्स और वो सब आपको जो मैं बताया था, इवन कोड्स, मे बी कीवर्ड्स, फिलोसफर्स, नेम्स एक्सेट्रा, है ना, और क्या क्या जो भी है आई ऑलरेडी टोल्ड। तो उसको आप यू कैन यूज देम, मे बी एग्जांपल्स आल्सो, उसको आप नोट समझते हैं बहुत ही शॉर्ट में। सो दिस वे योर एथिक्स नोट्स विल बी डन, ठीक है, बिकॉज एग्जाम इज नियर, नो नीड टू मेक कॉम्प्रहेंसिव और डिटेल और ये वो नोट्स, नो टाइम इज देयर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़े। नाउ ये तो एथिक्स हो गया। नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट, मतलब क्या करना है, how you are going to prepare for rest of the papers, GS, ठीक है। अभी तो डिटेल में एक दो चीज बताऊंगा और मैं, बिकॉज अभी थोड़ा संख्या कम है, नहीं तो फिर उनको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर आई विल बी टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन द मार्क्स एंड द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द टाइम यू हैव, ठीक है। इन तीनों का रिलेशन बताऊंगा, टाइम, मार्क्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, कैसे करना है क्या, ताकि किसी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब स्टूडेंट्स का, देयर इज हार्डली एनी स्टूडेंट्स ऑफ सीएमपी इसका पेपर छूटेगा, एक क्वेश्चन भी नोन क्वेश्चन। अननोन तो जाएगा तो इट्स ऑफ नो यूज कि अभी अननोन है, नहीं पता है, सो छूटेगा। लेकिन जो आता क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो उसका क्या रिलेशन है, वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, मार्क्स एंड योर टाइम यू हैव, तो डिस्कस दैट। अभी के लिए एक और खास बात जो इंपॉर्टेंट है, नाउ यू हैव, कितना टाइम हो गया अभी, तो आपके पास 20 तारीख हो गई, अगला महीना है अगस्त, फिर सितंबर में एग्जाम है, मोटा मोटी 2 मंथ्स के थोड़ा सा कम या अराउंड मान लिए, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इन दिस, इसमें 2 मंथ्स में यू हैव द ऑप्शनल, यू हैव ऑल द पेपर्स, है GS 1 2 3 4, फिर आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है एंड ऐसे का भी प्रैक्टिस करना है, सब चीजें करना है। तो व्हाट इज द एसेंशियल वे दैट यू डू एंड यू परफॉर्म द बेस्ट इन द एग्जाम,
सो पहला चीज उसके लिए है कि मिनिमाइज नंबर ऑफ मटेरियल्स, मीन्स एक चीज का एक ही बेस्ट मटेरियल, एंड मेन इज रिवीजन इज द की। मेन इज थिंग इज मिनिमाइज। जैसे आप जैसे मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे 2 जगह से 3 जगह से, रिवीजन नहीं हो पाएगा, जस्ट हार्डली 1 रिवीजन हो पाएगा। पर इफ यू रीड फ्रॉम द 1 मटेरियल यू कैन हैव 4-5 रिवीजन्स। एंड मोटा मोटी एग्जामिनेशन में, मेंस में क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हर मटेरियल में सिमिलर से रहेंगे। 30% difference will be there, 20-20, but it hardly matters because if you are not able to write in the examination, तो आपको 4 मटेरियल पढ़ो या 5 मटेरियल पढ़ो, इट डजंट मैटर, राइट? मैटर कर ही नहीं रहा है। मैटर क्या कर रहा है, कितना आपको याद है, हाउ मच यू रिमेंबर एंड हाउ मच यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रोड्यूस कैसे करेंगे? प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवीजन। अब जो भी एग्जाम में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली रिलेशन विद द रिवीजन। ठीक है, मतलब इसका, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, एकदम एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन, मतलब आपका रिकॉल कैपेसिटी क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव रिवाइज्ड, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मटेरियल। मतलब आपके ज्यादा मटेरियल है तो रिवीजन कम होगा, कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्शन कम होगा। कम मटेरियल है या एक ही मटेरियल है, उसका रिवीजन ज्यादा होगा और कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्शन हाई होगा। एग्जामिनेशन में आपका आंसर रिप्रोड्यूस होगा एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड, एंड यू विल, और वो चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज कराएगा। ठीक है, तो इससे क्लियर हुआ कि मुझको बहुत डिटेल में, मतलब पढ़ना तो है लेकिन एक ही मटेरियल से। ठीक है, तो आप जो भी मटेरियल आपने फाइनल किया है कर लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना है। ऑलरेडी मटेरियल पे हम लोग डिस्कस करते, लेकिन अब ऑलरेडी मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन मेंस वंस ट्वाइस, मेरे पास वो सब लिख के ही आते 2-3 बार। तो ऑलरेडी उस मटेरियल से कोई न्यू मटेरियल आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू, व्हाटएवर यू हैव रेड उसी को रिवीजन करना है। आर यू, इफ यू हैव एनी डाउट कि हम ठीक पढ़े नहीं पढ़े हैं, तो इफ यू आर गोइंग टू चेंज द मटेरियल तो फिर से पूरा पढ़ना पड़ जाएगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो दैट इज आई एम नॉट वेरी मच इन क्या सजेशन कि यू चेंज द मटेरियल, जो है तो उसी को काफी करिए। ठीक, ओके, सो एक ये बात हुआ, तो इससे क्लियर हो गया ना कि यू डोंट हैव टू स्टडी इन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सेकंड थिंग इज दिस कि वॉट एवर सोर्सेज यू आर स्टार्टिंग टू रीड, जैसे आपने उठाया कोई सोर्स, तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू राइट समथिंग फ्रॉम दैट सोर्स, है ना, फ्रॉम दैट सोर्स और बुक। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यू माइट बी रीडिंग सम करंट अफेयर मटेरियल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि करंट अफेयर में बी यू रीडिंग 2 मटेरियल्स बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग्स इट मे कम और मे नॉट, और मे बी यू रीडिंग 1 मटेरियल। तो आप सोचते हैं कि अरे मैंने पढ़ लिया लिख लूंगा, तो नहीं होता ऐसे। इट लीड्स, करंट अफेयर मटेरियल एटलीस्ट नीड 3 to 4 रिविजन्स बिफोर द एग्जामिनेशन। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट मच रिवीजन, इसका रिप्रोडक्शन कम होगा एग्जामिनेशन में। तो जब रिप्रोडक्शन कम होगा, राइट कम लिख पाएंगे, तो ऑब्वियसली नंबर कम हो जाएंगे। तो फायदा क्या हुआ कि जो सोर्स से आपने पढ़ना है उसको आपको लिखना है एग्जाम में, नहीं तो वो आपने पढ़ा तो टाइम वेस्ट हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉडर्न इंडिया का बुक उठाया स्पेक्ट्रम, वो तो आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन कोई ऐसा पार्ट है उसका चैप्टर है जो आपने, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल रिवोल्ट, यू हैव रेड इट जस्ट वंस ओनली, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार मान लीजिए आने वाला आ गया, तो आपने तो एक बार पढ़ा है, तो कोई यूज नहीं हो, तो आप भूल गए। अगर आपने वो पढ़ा, मान लिया आपने 5 घंटा लगाया उसको याद करने में, 5 आवर्स 6 आवर्स, आपने रिवीजन नहीं किया, तो वो आप एग्जाम में आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू राइट द आंसर, नहीं लिख पाए, सो रिजल्टिंग नो रिकॉल, एंड फाइनली नंबर नहीं आया उस क्वेश्चन में। सो उसका रीजन ये हुआ कि सोर्स जो आपने ठीक से आपने रिवीजन नहीं किया, तो आप लिख नहीं पाए। बेसिकली नॉट ओनली द रिवीजन कि आपने सोर्स में टाइम इन्वेस्ट किया 3 आवर्स 4 आवर्स, और मे बी कोई बुक पढ़ी आपने करंट अफेयर्स का मटेरियल, you have spent some 4 days 5 days maybe a week on that,
some 4 hours, 5 hours every day, but you are not going to you did not reproduce anything from there in the examination. So the whole point in reading that book for 4 hours for 7 days or 5 days is just a waste. उससे अच्छा क्या था, you could have read it from, you have read it some other thing, you have revised some other thing and you could have reproduced in the examination. तो फाइनली मतलब क्या हुआ, सी एग्जामिनर आप कितने नॉलेजेबल हैं इट विल, उससे कोई मतलब नहीं है। अब कितना एग्जामिनेशन हॉल में यू आर गोइंग टू राइट दैट इन पर्टिकुलर आंसर, वो शो करेगा आपको कितनी नॉलेज है। आपको खूब आता होगा, यू माइट हैव रेड 4 बुक्स 5 बुक्स पर सब्जेक्ट, बहुत आता है, पर एग्जामिनेशन में आप जब आए क्वेश्चन तो आपको याद ही नहीं आ रहा है, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए। जब नहीं लिख पाए देन देयर इज हार्डली, मतलब एग्जामिनर को क्या है, एग्जामिनर तो वो जानता नहीं है, यही कॉपी देखी और देखा आंसर बहुत ही वेगली लिखा है, बहुत ही नॉन, बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है, जनरलाइज्ड आंसर है, आपके नंबर अपने आप कम हो जाने हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई किताब उठाई है कि इसको मुझे पढ़ना है, तो उसको ऐसा पढ़ना है और माइंड को फ्रेम कर लेना है कि फ्रॉम वेयर एंड व्हाट पार्ट आई एम रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू राइट दैट थिंग इन दैट टॉपिक। वो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड के प्रोसेस से क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता है, तो मैं अगर फूड प्रोसेसिंग पढ़ रहा हूं तो आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग्स इन द एग्जामिनेशन, ये एग्जाम्पल मैं लिखूंगा। if you make your mind in that framework then you will be उसको याद कर पाओगे, और जैसे ही वहां पे फूड प्रोसेसिंग चमकेगा, एग्जामिनेशन आएगा, आपका माइंड चमक जाएगा, अरे मेरे को 4 एग्जांपल याद है, 4 एग्जांपल याद है, उसका केस स्टडी याद है, उसमें ये डेफिनेशन है, वो नया चीज बना है, वहां पे फूड प्रोसेसिंग है, और ये मैं सब लिख दूंगा। ठीक है, आए समझ मेरी बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से फ्रेमिंग कर लेनी है, माइंड में फ्रेमिंग कर लेनी है कि व्हाट एंड वेयर विच पार्ट आई विल यूज दैट फ्रॉम दैट सोर्स इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में आपको याद आएगा, वो तो आपका सर्चिंग हो जाएगा ना, माइंड सर्च करेगा कि क्या क्या मेरे पास फूड प्रोसेसिंग का स्टोर्ड है। उससे बेटर है आप फूड प्रोसेसिंग को टैग कर दो एग्जामिनेशन में कि फूड प्रोसेसिंग क्वेश्चन आएगा तो ये एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल मुझे याद आ जाएंगे, उसका डेफिनेशन याद आ जाएगा, उसका वो केस स्टडी याद आ जाएगा, ये सब याद आ जाएगा, 4-5 पॉइंट, और उसमें 5 पॉइंट एडवांटेज डिसएडवांटेज व्हाटएवर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे फूड प्रोसेसिंग आया एग्जामिनेशन में, योर माइंड विल ग्लो कि ये मुझे लिख देना है, उसको टैग करके रखिए, टैग करके, जैसे इसको खींचोगे तो वो रस्सी संग ये भी खिंच जाएगा, और ऐसे पढ़ लोगे कि चलो आएगा तो लिखेंगे, तो माइंड विल सर्च फ्रॉम द मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, व्हाट इज स्टोर्ड। तो वो सर्चिंग में टाइम लगता है, आसानी से आएगा नहीं, टाइम है नहीं, यू टू रश फास्टर, है ना, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। गॉट माई पॉइंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बता रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, दिस विल सेव टाइम फ्रॉम अननेसेसरी, है ना, रीडिंग एंड रिवीजन। क्यों भैया, ऐसा क्यों, हाउ इट विल सेव टाइम? देखो किताब तो पढ़नी है ना, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको, पैसिवली पढ़ते हैं, पैसिवली रीडिंग। व्हाट इज पैसिवली रीडिंग? कुछ टॉपिक आया, पढ़ लिया, हाँ हाँ इसमें ये है, वो है, ठीक है ना, हो गया रिवीजन, रिवीजन भी हो गया 2 बार 4 बार। एक्टिव, ये हो पैसिव रीडिंग, बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग इट विथ, क्या बोलते हैं, विद द इंफॉर्मेशन, यू आर नॉट प्रोसेसिंग टू राइट इन द एग्जामिनेशन, है ना, उसको कट कॉपी पेस्ट माइंड में नहीं हो रहा है कि क्या लिखना है उसमें एग्जामिनेशन में, आप सब पढ़ डाल रहे हैं, सब रीडिंग हो रहा है टोटल, सारे पैराग्राफ, सारा एग्जाम्पल, सारा केस स्टडी, सारा उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, फ्यूचरिस्टिक व्यू, सब थिंग, लेकिन it is not in the form of ready-made answer if the question is asked in these 3 ways or 4 ways. प्रोसेस क्वेश्चन का तो देखिए, यू नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की मिला जुला के मोटा मोटी 10 साल के पेपर में, और वही रिपीट होंगे इन वन फॉर्म और द अदर फॉर्म, और करंट अफेयर बेस्ड टाइप से, राइट, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपने फ्रेमिंग नहीं करी है तो एग्जामिनेशन फ्रेमिंग नहीं होने वाली, ये जान लीजिए। ये सब जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये सब स्ट्रेटजीज है, टॉपर्स ये सब यूज करते हैं, और वो उनका आंसर बेस्ट हो जाता है, और आपका वही पढ़े, वही नोट, वही विजन, वही फोरम, और नंबर आ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसिव रिवीजन है। व्हाट इज एक्टिव रिवीजन? एक्टिव रीडिंग बोलते हैं, एक्टिव रिवीजन और पैसिव रिवीजन बताऊंगा। ये एक्टिव रीडिंग बताते हैं। एक्टिव रीडिंग क्या है? एक्टिव रीडिंग इज दिस दैट आपको पता है कि फूड प्रोसेसिंग से 5 साल में या 10 साल में 4 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 4 टाइप्स,
कभी एडवांटेज पूछ लिया है, कभी न्यू वे ऑफ फूड प्रोसेसिंग पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया है। तो 4 टाइप से क्वेश्चन आए हैं, मटेरियल में सारा टाइप का लिखा हुआ है, तो अब फ्रेम कर लिया, टैग कर लिया, ये आएगा तो ये लिखेंगे, ये आएगा तो ये लिखेंगे, ये आएगा तो ये लिखेंगे, एग्जांपल्स में ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, बस हो गया। ये हुआ आपका एक्टिव रीडिंग। यू हैव रेड इट कॉन्शियसली, कॉन्शियसली कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली नशे में याद नहीं हो रहा है, एकदम सोच समझ के पढ़ के याद हो रहा है। ठीक है, आए समझ में? देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप छोटी-छोटी बातें आपके बहुत लॉस करती है मार्क्स का। अब जब पैसिव रिवीजन करें, पैसिवली रीडिंग करेंगे, तो अब आप पैसिवली रीडिंग नहीं करेंगे इस सेशन के बाद, एक्टिव रीडिंग करेंगे। यू शुड नो दैट कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको कहाँ यूज करना है, वेयर टू यूज इट। टॉपर आप ही लोगों में से बनेगा, यही लोग जो मेरे पास सामने आए हैं, इन्हीं में से टॉपर बनेगा, बन सकता है, क्यों नहीं? राहुल राहुल श्रीवास्तव 10th रैंक लाया, क्यों लाया? वो तो टॉपर ही है, मेरी नजर में ही इज द फर्स्ट रैंक। क्यों उसकी 10th रैंक आई है? उसके हाईएस्ट मार्क्स जीएस में है, हाईएस्ट मार्क्स उसके क्या बोलते हैं एसए में है, उसके नंबर कम कहाँ है? 250 नंबर उसके ऑप्शनल में है। अगर उसके दो वो रह गया 30 नंबर से टॉप करने में, अगर 30 नंबर उसके 280 आ जाते तो टॉपर हो जाता। तो टॉपर तो हमने प्रोड्यूस किया ना ऑलमोस्ट। मेरा तो काम देखिए, मेरा काम क्या है, ऑप्शनल तो है नहीं मेरा काम जीएस है, ऐसे है, उसमें उसके हाईएस्ट मार्क्स, मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, सब समझा दिया, उसने यूज किया, नंबर आ गए। ठीक है, अब अगर उसके ऑप्शनल में नंबर आते 280 तो टॉपर ही हो जाता, तो मैं तो उसको टॉपर ही मानता हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब क्या है, यही सब स्ट्रेटजीज टॉपर यूज करते हैं, यही सब लगाते हैं, निकल आते हैं, और ऐसी और स्ट्रेटजी में भी मैं बताऊंगा। तो पैसिव रीडिंग आप बंद करिए, एक्टिव रीडिंग करिए, इतना क्लियर है ना? अब आपको बताते हैं, रीडिंग तो हो गया, पहला रीडिंग हुआ, दूसरा रीडिंग हुआ, अब एक चीज है पैसिव रिवीजन और एक है एक्टिव रिवीजन। कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऑल इज वेल, आर यू गेटिंग? क्या फालतू चीज बता रहा हूं मैं? इज इट ऑल राइट? या आपको पता ही था ये सब चीज, कुछ और चीज बताई जाए? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम्म बाकी लोग कहाँ गए? एनीवेज, कृष्णा एंड ऑल इज वेल ना? ठीक है, मोनिका ठीक है, ओके, यस, एनी क्वेरी? नो ना? ठीक है, हाँ, एक्टिव रीजन है, पैसिव रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, एक्टिव एंड पैसिव। सी नाउ, पैसिव रिवीजन क्या होता है? लेट मी टेल यू। पैसिव रिवीजन क्या होता है? आप यू नो नाउ एक्टिव रीडिंग आपने पढ़ लिया, अब आफ्टर ए वीक टाइम और आफ्टर ए मंथ टाइम और 2 वीक्स के बाद आपको रिवीजन करना है। अब एक्टिव रीडिंग हो गई, सॉरी, पैसिव रीडिंग और एक्टिव रीडिंग फर्क आप जानेंगे। नाउ व्हाट इज पैसिव रिवीजन? पैसिव रिवीजन इज यू हैव जस्ट ओपन द पेजेस कि अच्छा ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस है, अच्छा ये है, ओके दिस इज द वर्ड, ओके दिस इज द एथिकल डायलेमा, ओके दिस इज ये, और दिस इज ओके, ये है लिखना है। That's all. आपने रिवाइज कर लिया, यू हैव जस्ट सीन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स और इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स विच यू अंडरलाइंड, एंड व्हाट यू हैव अंडरलाइंड और यू हैव जस्ट उसको देख लिया, जस्ट यू हैव सीन, विजिबल रखा, एंड यू थॉट ओके आई नो दैट, वो तो पता ही है, आई नो दैट देयर ऑल फोर कीवर्ड्स आर देयर एंड दिस एग्जांपल, अच्छा ठीक है, हो गया, डन, है ना? 5 मिनट्स 10 मिनट्स हो गया रिवीजन, दैट इज पैसिव रिवीजन। पैसिव। एक्टिव रीजन क्या है? एक्टिव रीजन ये है कि now the question is on food processing, जैसे अभी बताया मैंने। so now food processing पे I have done the active reading, तो मुझे पता था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। now the active revision is the recall of whatever you have read, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको रिवाइज करना है एक्टिव रिवीजन में। जैसे उसमें 4 पॉइंट्स थे, पहला ये था, दूसरा ये था, बिना देखे, विदाउट सीइंग योर नोट्स, मतलब एक बार देख लेना है, उसके बाद माइंड से एक्टिवली रिवाइज करना। उसमें 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 पैसे, उसमें एडवांटेज में 4 पॉइंट्स थे, ये एक एग्जांपल था, दो एग्जांपल था, एक गुजरात का है, एक यूपी का है, एक उसके बाद फूड प्रोसेसिंग में कहाँ का इंडस्ट्री बन रहा है, कहाँ एसीजेड बन रहा है, ये एग्जांपल है, ये हो गया। ऐसे दिस इज रिकॉल। सो एक्टिव रिवीजन इज बेसिकली रिकॉल, ठीक है, रिकॉलिंग है, एंड पैसिव रिवीजन इज बेसिकली
व्हाट, रिकॉग्नाइज, उसमें रिकॉग्नाइज होता है, अच्छा ये पॉइंट्स, हाँ ये यहाँ ये तो है यहाँ पे, ठीक है ये भी है, तो पैसिव रिवीजन है। सो यू नो दैट वेरी वेल कि रिकॉग्निशन से बेटर रिकॉल है, एंड रिकॉल इज बेसिकली will help you to reproduce in the examination, in the exam, ठीक है, रिकॉल करेगा। ये क्या होगा, इससे पुअरली पुअरली रिप्रोड्यूस होता है। रिप्रोड्यूस मतलब ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड यू आर, है ना, मैनिपुलेटिंग एज पर द जो कंटेंट है एंड राइटिंग एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। सो दिस इज रिकॉग्नाइजिंग से बेटर है रिकॉलिंग। तो रिकॉल पे करना है रिवीजन, दैट इज एक्टिव रिवीजन, रिकॉग्नाइजिंग इज पैसिव रिवीजन, ठीक है, द क्लियर है ना। तो इस सी दीज आर इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू रीड एंड रिमेंबर एंड रिवाइज। अगर अभी ये नहीं बताऊंगा तो आपका पूरा प्रिपरेशन 2 महीने का पैसिव रीडिंग और पैसिव रिवीजन में चला जाएगा, रिजल्टिंग कि आपके नंबर ही नहीं आने वाले। आपने तो बीज ठीक से बोया ही नहीं है तो पेड़ तो निकलेगा नहीं उसमें, वो टेढ़ा मेढ़ा निकल के बेकार हो जाएगा। तो इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो मैंने अभी बताया। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आगे तक की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लास्ट डे तक, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हुआ। और एक एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं, अब जो भी पढ़ना है वो एग्जाम में लिखना है, स्पेसिफिक लिखना है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, नॉट जनरलाइज्ड, ठीक है, नॉट जनरलाइज्ड। व्हाई, सी एग्जामिनर को क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे whether it is ethics also, essay also, generalize के नंबर नहीं है। Why? Generalize तो कोई भी लिख देगा, anybody can go and write something generalized way of answering, बहुत नंबर कम मिलता है उससे, राइट, एवरेज से बिलो मिलेगा। द मोर जनरलाइज द मोर, द लेसर द मार्क्स, मोर स्पेसिफिक मोर मार्क्स, वट एवर द सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ले लीजिए आप, जनरलाइज के नंबर कम ही रहेंगे। जनरलाइज तो कोई भी लिख देगा, व्हाट इज द न्यू इन, व्हाट न्यू यू आर राइटिंग। सो स्पेसिफिक लिखने के लिए यू शुड नो और अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक से पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं पता है तो आप स्पेसिफिक नहीं लिख पाएंगे और जनरलाइज हो जाएगा। या यू डोंट हैव दैट कंटेंट, कंटेंट इज वीक, या आपको बहुत याद नहीं है या आपने ठीक से पढ़ा नहीं है वो टॉपिक, सो स्पेसिफिक नहीं होगा तब जनरलाइज्ड होगा। तो आई विल दैट आल्सो आई विल टीच यू दैट सच क्वेश्चंस व्हिच वेयर यू आर जनरलाइज्ड, तो कैसे लिखना है उसको, कैसे कवर करना है फिर आंसर को, और जब वो स्पेसिफिक है तो उसको एक्सपोज कैसे करना है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो जानिए कि वॉट एवर यू आर रीडिंग नाउ, ट्राई टू बी स्पेसिफिक, एग्जैक्टली क्या लिखना है आपको वो पता होना चाहिए उस टॉपिक में अगर वो आएगा। ओके, ये तो क्लियर ही होगा, जनरलाइज से नंबर कम रहेगा चाहे वो ऐसे ही क्यों ना हो, ठीक है। और भी जो बात है मैं बताना चाह रहा था पर टाइम कम है, उसमें 1 घंटा और लगेगा, जिसमें आई टेल द रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स वर्ड्स। मे बी आप लोग टेस्ट लिखना चालू करिए, राइट। नेक्स्ट संडे आई विल टेल दैट व्हाट यू हैव टू, हाउ यू हैव टू राइट और एक्सीड द वर्ड लिमिट, या उसी वर्ड में या पेपर छूटना नहीं है, क्या क्या करना है, एंड अदर स्पेसिफिक थिंग्स आल्सो आई टेल, ठीक है। उसके बाद जीएस 1 2 3 के और कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज है वो भी बताऊंगा, है ना, तो ऐसे चलेगा, आई विल डू दैट। एक मैं क्लास ले लेता हूँ नेक्स्ट वीक संडे को, और कोई इसमें डाउट है तो यू मे आस्क, कोड बेस्ड क्वेश्चन, नहीं, नो नीड टू राइट द कोड अगेन इन द आंसर, ठीक है, आंसर में कोड नहीं लिखना है, डोंट हैव टू राइट द आंसर कोड इन द आंसर, इंस्टेड यू कैन, जो कोड्स है ना, आई हैव टोल्ड दैट कि वो बेसिकली स्टेटमेंट होता है which has been which is told by some scholar or some thinker. So that statement ko you can break, if you have asked the meaning, break into जो भी keywords है, ठीक है। So understand that keywords कि क्या वो keywords बोल रहा है, then you, yes, write the introduction based on the collective keyword, है ना, अगर वो you can use that, then come to the, then the various dimensions of the statement,
or maybe quote based on कि क्या है वो dimension, maybe it is positive or negative or whatever. It may be positive, it may not, it may be some other thing also, some explanation. It may explain something. ठीक है. Then come to very come to the similar quotes given by some other person if you remember. Otherwise, no worry. Hmm. Similar quotes if you remember. Else, no worry. Then, if it is not there, come to the examples. Examples, either the well known, if you know it well, very good. If you do not know, then you have to frame some examples of from day to day life, something like that. But that framing will take time, so you may avoid this. If you don't have much content to write, then you frame the example. But like this part is very generalized way, or you can use this when you don't have much content. Else, try to use the well-known examples. Within one sentence, it will be over. Okay. Then maybe you can use the various relevance in civil service if it is there. ऐसा कुछ, if something is there, you may use one statement or line or sentence for this one civil service relevance, that particular thing, and then conclusion. Okay, this way you can use this one. है ना? Dimensions you can definitely tell the positive way of it, that quote, or negative way of that quote. है ना? With actually both way you may give examples if you know, if you remember, something like that. Okay, so it will come with a little bit practice, and the more you read from the various examples I already shared, various case studies, or maybe various examples from various or maybe philosophers quotes and all, then you can correlate and you can write it. ठीक है. I want to tell more about like how to write introduction, conclusion also. We'll have one more class for that, introduction, conclusion, and insider. How to write the right kind of words. क्या लिखना है, कैसे लिखना है ना? फिगर कहाँ बनाना है, फिगर कहाँ नहीं बनाना है. So you people are here. Shall I tell something more or next class? Continue. Some more people will join tomorrow maybe in this course. I thought of telling detailed way in the next class. There are various ways in which UPSC is asking questions in GS 1, 2, 3 also, especially 2 and 3. That is the statement based, and one is related question with the statement, or statement question, statement based plus unrelated questions with the statement. So that also we are going to discuss, right? So yeah. Okay, no problem. We'll discuss it in the next coming Sunday. Coming Sunday is very important for the dead words and EAB. This thing also I want to finish. Kuch additional thing I will also, because this today was the ethics one. Then I will come to the essay writing, essay philosophical, and strategy of essay writing as philosophical in the normal essays. How to write, what to write, the right kind of way in which you can complete your essay paper. Okay. Okay, then already it's 11. Some of you might sleep. Okay. Thanks a lot. Thank you, everyone. Any query you have, you can ask. I'm still here. If no, then we'll close. Okay. Thank you, everyone. Not much query, right? Any query, if you can ask me via call also, no problem, right? We'll have some more classes by Satyajit sir also. Some maybe one or two classes by Rahul, and I will be taking the next coming Sunday one more class where we'll be discussing most important things about the essay, and sorry, most of the things about the word limit, and most importantly, see, my class maybe have the deviation, so I will start by 9:30. Okay, some कभी कभी deviation हो जाता है कि आधा घंटा एक घंटा आगे पीछे, so that you can keep the group unmuted so that you get the
notification and as soon as when I post it. यही ग्रुप को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है? अभी म्यूट होता है तो फिर वो यू विल मिस द नोटिफिकेशन and in short notice also sometimes I'll take the webinar within 1 day notice also. Okay, ठीक है फिर, thank you, thanks a lot.